request our esteemed dignitaries to please take their seats on the dais. Thank you, sir. A very good morning to our distinguished guests, respected dignitaries, esteemed speakers, faculty members, and my dear participants. I, Ms. Priyanka Pawar, feel an honor and privilege to extend a warm welcome to each one of you to the national level conference on regulatory aspects on medical devices and pharmaceuticals, organized by Kekewa College of Pharmacy, sponsored by Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Nonere, Bioscience Private Limited, Bandari, and Hexagon Nutrition, Bandari. We are deeply honored to have you all with us as an esteemed panel of speakers and guests who have dedicated their expertise to advancing regulatory frameworks in healthcare. Let us extend a warm welcome to Dr. V.K. Maurya, Professor Emeritus Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Sambhajinagar, Dr. N.S. Patil, Coordinator, Pharmacy Institutes, Kekewa Education Society, Nashik, Dr. K.S. Sarankhya, Principal, Kekewa College of Pharmacy, Nashik, Dr. V.J. Bhamre, In charge Principal, Kekewa Institute of Pharmacy, Pimpras. Thank you all for gracing this occasion with your presence. Your insight and contributions will undoubtedly add great value to today's discussions. In today's rapidly evolving healthcare landscape, medical devices play a crucial role in diagnosis, treatment, monitoring, and prevention of diseases. As the pharmaceutical industry continues to integrate advanced medical technologies, ensuring regulatory compliance becomes a more critical step than ever. This National Conference on Regulatory Aspects on Medical Devices in Pharmaceuticals serves as a vital platform for industry professionals, researchers, policymakers, and regulatory authorities to explore current regulatory policies governing medical devices, understand global regulatory trends and their impact on pharmaceutical industry, discuss various challenges and opportunities in regulatory compliance, promote collaborative efforts between industry, academia, and regulatory authorities. Let us join hands in navigating the regulatory landscape and driving excellence in medical device governance. We have a power-packed agenda with insightful sessions, expert discussions, and interactive question and answer sessions that promise to enrich our understanding of this vital domain. We hope that you all will take full advantage of this opportunity and participate actively in the discussions. Once again, on behalf of Kekewa College of Pharmacy, I warmly welcome you all to this workshop and wish you an enriching and insightful experience. As we commence this prestigious national conference on regulatory aspects on medical devices and pharmaceuticals, let us begin with a tradition that symbolizes knowledge, wisdom, and enlightenment, that is our lamp lighting ceremony. To mark the formal inauguration of this conference, I now request our esteemed chief guest, Dr. V.K. Maurya sir, and Dr. N.S. Patil, and all the dignitaries to please come forward for lamp lighting ceremony. या श्वेतपद्मासना
Thank you so much, sir. Now I request Dr. N.S. Patil sir to please felicitate our today's chief guest, Dr. V.K. Maurya sir. Thank you so much, sir. Now, I request Dr. K. Sankhe sir to please felicitate Dr. N.S. Patil sir. Thank you, sir. Taking one step forward to our conference, now I request Dr. R.D. Amrutkar, IQAC Head and Coordinator, 2nd Pharmacon, to come forward and introduce the workshop. Good morning to everyone present here. Dignitaries on the dais, Honorable Dr. V.K. Maurya sir, Honorable Dr. N.S. Patil sir, Principal Salunkhe sir, Principal Viju Namre sir, and today's resource persons Sachin Namre sir and Amit Patil sir, and dear students as a delegates from the various institutes of the different region. I welcome you all in our lush green campus of KK Wagh Education Society and to the second KK Wagh Pharmacon 2025 as a national conference on regulatory aspects on medical devices and pharmaceuticals organized by IPC of KK Wagh College of Pharmacy, Nasik. So this KK Wagh Education Society is the leading education society in Nasik district and the state of Maharashtra, established in 1970 by Padma Shri late Kaka Saheb Wagh, which is spread in around. This institute is spread around 9 beautiful campuses, which over 21,000 students studying from KG to PhD in various fields, and nearly 2,000 motivated and qualified faculty engaged in the teaching, research, placement, training, testing and counseling. Our KK Wagh Education Society is an esteemed name for quality education in the field of engineering, Polytechnic, agriculture, nursing, liberal arts, humanities, education, schooling and pharmacy. We always strive for the best and believes in academic excellence with the skill development. Now we at the KK Wagh College of Pharmacy, Nasik, working on the same principle since 2017 and committed to development of budding graduates ready for their career development. Recently, in last academic year, our college has been accredited by NAC with A grade, and now in the current academic year, we have introduced 2 PG courses with the specialization in pharmaceutics and pharmaceutical quality assurance. In accordance with this today's conference, the medical device industry plays an crucial role in the improving healthcare outcomes globally and with the rapid advancement in technology and innovations. The regulatory environment surrounding these devices is constantly evolving. This conference aims to shed a light on the key regulatory framework that guide the development, manufacturing and marketing of medical devices, ensuring patient safety and compliance. The plenary session will help to create an awareness in the field. I am sure that this conference will be beneficial and full of valuable information for everyone who is attending this. I wish you all the best to all the delegates who are present here. Thank you. Thank you so much, sir. We have here with us today Dr. V.K. Maurya sir as a chief guest. It is a great honor
to introduce Dr. V.K. Maurya, a distinguished academician, researcher and administrator in the field of pharmaceutical sciences. Currently, he is associated with various regulatory bodies. He is a Professor Emeritus at the Department of Chemical Technology, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Sambhajinagar. He has made significant contributions to pharmaceutical education and research. With a rich career spanning over 4 decades, his expertise encompasses formulation development, molecular modeling, instrumental analysis, nanotechnology and regulatory policies in pharmaceuticals. He has worked at NDMVP's College of Pharmacy in Nashik for around 20 years. Dr. V.K. Maurya has also served as the principal of Government College of Pharmacy, Amravati and Sambhajinagar, where he played a pivotal role in shaping policy frameworks, advancing pharmaceutical research and integrating computer-aided learning into academia. With a deep commitment to academic excellence, he has mentored numerous students, delivered insightful guest lectures, and contributed extensively to the field of pharmaceutical formulation and analysis. His analytical skills, leadership in governance, and dedication to innovation continue to inspire the next generation of pharmaceutical professionals. We are truly privileged to have him with us today to acknowledge his valuable insights. So I request Dr. V.K. Maurya sir to please address the audience. Thank you, madam, for a nice introduction. I don't know I am worth of it or not. सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मेरा प्रणाम। आज काही थोर पुरुष जैसे परम पूजनीय काकासाहेब वाघ, परम पूजनीय बाळासाहेब वाघ यांची कर्मभूमी नाशिक याला माझं भावपूर्ण नमन। कारण असं आहे की माझी एज्युकेशन, माझी मातृभूमी मध्य प्रदेश राहिली तर माझी पूर्ण कर्मभूमी महाराष्ट्रच राहिली। त्यामुळे माझी प्रोफेशनल रूट्स नाशिकच आहे। नाशिकपासून मी जवळजवळ 20 वर्षापासून लांब आहे, तरी सुद्धा माझे स्मृती पटलवर नाशिक आणि नाशिककरांची कोमल मृदुल मैत्रीपूर्ण छवी कधीही विसरत नाही। आणि तुम्ही दिलेला माझा इंट्रोडक्शन यानंतर मला वाटलं मी काहीतरी चांगलं केलेलं आहे, काही खात्री नाही आहे मला। आणि इथं जेव्हा आलो तर माझे जुने मित्र पाटील सर, साळुंके सर आणि अनेक लोक यांच्याशी भेट झाली तर मला असं वाटलं की परत माझ्या घरी आलो आहे। आपल्या सगळ्यांनी दिलेल्या भरभराटीच्या प्रेमासाठी माझा भावपूर्ण नमस्कार। आजच्या कार्यक्रमाला जेव्हा मला आमंत्रण मिळालं, साळुंके सरांचा फोन आला की मेडिकल डिव्हाइसेसवर प्रोग्राम आहे, तर आजपर्यंत मी के वाघ कॉलेजला कधी आलो नव्हतं। मी MDPला राहिला इतकं, तरी सुद्धा या कॉलेजमध्ये येण्याचं सौभाग्य मला मिळालं नाही। आणि जेव्हा मी एंटर केले तर मला वाटलं की मी माझी प्रोफेशनल लाईफमध्ये एक मोठा टप्पा मिस केलेला आहे। इथे आल्यानंतर पाहिला त्याचे संपूर्ण कॅम्पस, काम करण्याची पद्धत, डिस्प्लेस, आणि आजच्या काळात जेव्हा फार्मसी प्रोफेशन आणि फार्मसी टीचिंगमध्ये
सगळ्यांनी मान्य करावं लागेल की थोडं क्वेश्चन मार्क आहे. त्या क्वेश्चन मार्कतून एक चांगला अशी संस्था इथे अजूनही काम करताय, मला अभिमान वाटला. आणि जेव्हा मी इथे होता त्यावेळी या के वाघ कॅम्पसची बिगिनिंग होती. तर नाशिक एक सहकाराची भावनातून तळेगाळी लोकांसाठी काम करणारी जी इकडची मंडळी होती, त्यांनी आपण ते 4 थोर पुरुष होते NDMVPचे जे फंडामेंटल, त्यांची जीवनी वाचून असं वाटायचं की लोक पैशासाठी इतकं करतात आणि या लोकांनी काय केलंय. आणि आजचा एक खूप माझा एक इतका अनुभव आलेला आहे, मी तुम्हाला सांगू शकत नाही. पाटील सरांशी बोलताना मला आठवण आली दुलाजी नाना पाटीलची. आम्हाला ती किती लोकांना माहिती आहे. पाटील सर तुम्हाला सांगतो, माझा इंटरव्ह्यू त्यांनीच घेतला होता. आणि त्या माणसांना ते संस्थेचे अध्यक्ष असूनही कधीही संस्थेची कार वापरली नाही. आणि ते आपला CBS जुना CBS पासून मीटिंगसाठी पायी यायचं आणि म्हणायचे नाना तुम्ही म्हणजे अध्यक्ष हो, म्हणजे अध्यक्ष पण ही कार जो आहे सामान्य माणसांचे पैशातून आहे. आणि आज त्या काळाची लोकांची विचार करण्याची पद्धत आणि आजची पद्धत पाहून थोडंसं दुःख वाटतंय. पण त्यांची जीवनी आणि त्याची जीवन पद्धती जगण्याची जे आम्ही जवळून पाहिलंय, आमच्या डोक्यात कधी हा प्रश्न आला नाही की मला इन्क्रीमेंट कधी मिळेल. कधी म्हणजे मला कधी आठवण आली नाही. 17 वर्ष मी लेक्चरर म्हणून काम केलं. मला माहितीच नव्हतं की असिस्टंट प्रोफेसर एक पद असतो, हा माहिती नव्हता. प्रोफेसर एक पद असतो म्हणजे याचे फार दुष्प्रभाव पण झालेला माझ्या करिअरवर की ज्या माहिती नाही पेपर पब्लिश करायचे. आजची रेट रेसमध्ये सगळे पेपर करायचे, पेटंट करायचं. पण याचा अर्थ आहे की आजची जनरेशन चांगली नाही असं नाही आहे, ती आजची काळाची गरज आहे. हे सगळं पाहून जेव्हा मेडिकल डिव्हायसेसवर एक प्रोग्राम होतोय तर खरं म्हटलं ना सर तर माझ्या डोक्यात चांगले विचार आले नाही. कारण असं होतं की मला वाटलं की आज साळुंखे सरांनी के वाघमधून मला इन्व्हिटेशन आलं, इतके वेळ झालं कधी आलंच नाही. आणि मला आठवण आली की काय कारण होऊ शकतं की माझं नाव इथे प्रपोज केलेलं आहे. पण अकॅडमिक कामासाठी मी कधी नाही म्हणत नाही. मी जास्त न विचारता सरांना म्हटलं की येईल. आणि काल रात्रपर्यंत माझे काही असे डोक्यात विचार नव्हता. आता इतके वर्ष झालेले सगळ्या विषयांवर थोडी थोडी माहिती राहतीच लोकांशी बोलणं. मेडिकल डिव्हायसेसवर थोडीफार माहिती होती. 2 नाव पत्रिकेमध्ये दिसले. एक नाव होता सचिन बांबरे सरांचं आणि दुसरं नाव होता पाटील सरांचं. हे पाहिल्यानंतर माझी सवय आहे की कुठल्याही प्रोग्राममध्ये जातो तो जरा थोडीशी पाहणी करतो, कोण आहे, काय बोलणार आहे, सरांशी विचारला. आणि याचं पहिले पाहणी करतो की माझे श्रोता कोण आहे. तसं की श्रोतांची बाबतीत आपण माहिती नाही घेतली तर मूर्खपणा आहे. चायनामध्ये गेलो आणि संस्कृतमध्ये वाचला तर काय अर्थ नाही. तर जिथे मी प्रोग्राममध्ये जातो हे सांगण्याऐवजी की मला काय माहिती आहे, हा इम्पॉर्टंट आहे की समोरच्या माणसाला काय पाहिजे याचं थोडंसं भान ठेवतोय. आणि प्रोबॅबली त्यामुळे मला चांगलं रिसर्चरची पदवी नाही मिळाली तर चालेल, पण माझं चांगलं शिक्षक म्हणतात बरं हे खरं आहे. तर आजचे माझे कीनोट ॲड्रेसमधून थोडी वेळ घेतो सर. माझी प्रॉब्लेम एकच आहे की माझा इंजिन लेट स्टार्ट होतोय. मी थोडा जाणण्याची माझी उत्सुकता आहे की आपण सगळ्या कुठल्या वर्गाचे विद्यार्थी आहे. थोडंसं माहिती पडली त्याप्रमाणे आपण बोलू. माझी मराठीवर जाऊ नका बरं का, मी हिंदी भाषी आहे. माझी मराठी चुकीची होऊ शकते. सगळी ग्रामटिकल मिस्टेकसाठी सगळ्यांची सुरुवातीलाच माफी मागतोय. हसू नका.
पण मी मनापासून बोलतोय, फक्त याची खात्री ठेवा. आपण कुठल्या वर्गाचे विद्यार्थी आहे? थोडंफार डिप्लोमा, B.Pharm. अरे ग्रेट. ऑल B.Pharm. अरे M.Pharm. म्हणजे गुड. बरं, सगळे हॅपी आहे? तुम्ही बोललं का? बोलू. बरं, मी जेव्हा बोलण्याची सुरुवात करतो माझा एक कन्फर्मेशन टेस्ट असतो की तुम्ही मला TV समजताय का? हॅलो, TV समोर बसतात, आपल्या हातात रिमोट असतो. समोरच्या माणसाने कधी बोलावा, कधी थांबावे, कधी चॅनल चेंज करावे असं असतं. तर तुमच्या हातात माझा रिमोट आहे का? हॅलो. बर, मी कब्रस्तान मध्ये बसलाय का? हॅलो. माझ्यासमोर जिवंत आहे लोक? तर जिवंत लोकांची एक प्रतिक्रिया कायमची असतात. हॅलो, असते की नाही? तर प्लीज बोला ना, मी तुमच्या दुश्मन आहे नाही ना? प्लीज बोला, प्लीज बोला. मला कधीही वाईट वाटत नाही की माझं बोलताना कोणी मध्ये बोलला आणि मला आठवलंय. आणि प्लीज, मी इतकं वाईट नाही आहे. तर स्माईल द्या, स्माईल द्या. हा, टेन्स बसू नका. तुम्हाला बरेचसे इन्स्ट्रक्शन मिळाले असेल. बी डिसिप्लिन्ड, मोबाईल वापरू नका असं बोललं असेल. हॅलो, बोलताय ना? तर प्लीज असं काही करू नका. बोला, एकमेकांशी बोला, स्माईल द्या. कधी तुमचा इम्पॉर्टंट मेसेज आला त्याला रिप्लाय करा. नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. हा, पण याच्यातून मी जे बोलतोय त्याच्या बाबतीत थोडंफार लक्ष द्या. तरी येणारे 15-20 मिनिटं मी जे काय बोलणार आहे त्याच्यात माझी लाईफची वेळ जाणार आहे थोडी, आणि तुमच्या लाईफची पण वेळ जाणार आहे. माझी लाईफ संपत आलेली आहे. तुमची लाईफ मध्ये हा जी 15-20 मिनिट आहे ना, ते इन्व्हेस्टमेंट आहे. तुम्हाला याची किंमत माहिती आहे का? हाऊ मेनी रुपीज यू आर गोइंग टू स्पेंड? नो, नो, बिकॉज यू आर नॉट पेड एनीथिंग. ओके, बट your life doesn't have the value in terms of money. It is your investment. Whenever you are in an educational institute, you are investing time, and this investment of time will craft your future. हा माझी सांगण्याची इच्छा आहे. आणि आज जे सब्जेक्ट आपण बोलतोय, या सब्जेक्ट बाबतीत बरीचशी मुलांमध्ये एक प्रश्न निश्चितच असेल की का मेडिकल डिव्हाइस? हा, हॅलो, रेज युअर हँड. अरे भाई, आपण समजू शकतो फिजिकल फार्मसी, डिस्पेन्सिंग, IR हे कोर्समध्ये, पण मेडिकल डिव्हाइसेस बाबतीत सेमिनार ठेवायचा. किती मुलांच्या मनात हा प्रश्न आहे? कोणाच्या मनात? उत्तर नाही द्यायचं. हॅलो, रेज हँड. कधी हा प्रश्न असेल, रेज हँड. हा, शेजारच्या लोकांना विचारून घ्यायचा की हात उचलायचा की नाही. हा प्रश्न आहे का तुमच्या मनात? तो रेज हँड. फ्रोझन शोल्डर जिंचा नसेल, रेज हँड. फक्त 2 लोकांच्या मनात आहे, सर दिस टॉपिक इज नॉट गुड देअर. बाकी तुम्ही सगळ्यांना माहिती आहे का बरं आपण मेडिकल डिव्हाइसेस शिकायचा? हेलो डियर फ्रेंड, आपको पूछो, मैं नीचे आऊंगा, मैं छोड़ता नहीं हूँ, नीचे आऊंगा, मला कॉलम माहित द्या. हेलो, हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके. ऐसा आना चाहिए सर. तब लगता है क्लास में तुम लोग यदि बोलोगे नहीं ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं. हाँ, तुमको पता है क्या कि मेडिकल डिवाइसेस पर सीखना चाहिए?
हाँ, आपको खड़े होने को किसने कहा था? मैंने तो हाथ उठाने को बोला था, आप तो खड़े हो गए। नहीं तो पूछने का मतलब मैंने बोला खड़े हो के बोलो, बैठ जाओ आप। तो मैंने पूछा था कितने लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि मेडिकल डिवाइसेस पर सेमिनार क्यों रखना है, ये सवाल है कि नहीं? इतना बार पूछा ना यार, तो या तो हाथ उठाओ, नहीं तो बोलो कंधा दर्द कर रहा है। उठाओ आप, अभी भी नहीं है तो तुमसे सवाल जवाब पूछूंगा। यदि जिसने हाथ नहीं उठाया तो उससे मैं जवाब पूछने वाला हूँ। ओके ओके, सब टॉपिक अच्छा लगा है। मतलब मजबूरी हो क्यों नहीं हो, हाथ तो उठा दिया लोगों ने। एज ए फार्मेसी स्टूडेंट और आप फाइनल ईयर के हो और आप एम.फार्म के हो, ये बात छोड़े बिना कि भाई एम.फार्म मजबूरी में किया गया कोर्स है, बराबर है? हेलो, हाँ, तो क्या मुझे मालूम है आपके ब्रेन का ऑपरेशन कैसे करना है, ठीक है? तो मेरे साथ चलो आप, हाँ, मेरे आगे चलोगे ना गिरोगे, ठीक है? तो सबके दिमाग में, फाइनल ईयर के स्टूडेंट और एम.फार्म के दिमाग में एक प्रॉब्लम तो आती है, आगे क्या? हेलो, अभी कैसे बोलना चालू हुआ, है ना? तो जब ये प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आने का कारण ये है कि अपन ने जिंदगी के 4 या 6 साल बिता दिए हैं और हमको ऐसा दिख नहीं रहा है कि आगे नहीं, ऐसा नहीं, फ्यूचर तो दिख रहा है। जब हम बाकी डिसिप्लिन के लोगों से बात करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग का, तो देखते हैं यार वो कंप्यूटर वाला है, उसको इतनी सैलरी है, या कहीं ना कहीं दिमाग में आती तो है बात, आती है ना? तब ऐसा लगता है कि फार्मा इंडस्ट्री की कंडीशन आज की डेट में क्या उतनी अच्छी है? तो जनरली आंसर बहुत नेगेटिव आता है। ओके, हाँ या नहीं? हाँ, तो सबके चेहरे बुझे बुझे हैं। ओके, तो आपको ये चेहरे का बुझा हुआ होना, उसने कुछ किया हो या नहीं किया हो, आपके चेहरे की स्माइल जरूर छीन ली है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेमिनार से शायद वो स्माइल वापस होने का एक रास्ता निकलेगा, इसलिए सेमिनार। बाकी मेडिकल डिवाइसेस क्या है वो अपन बाद में देखेंगे। अपने साथ 2 बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं जो इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हैविंग ए रोल मॉडल इज ए बेटर थिंग टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एनीथिंग। मगर वो जो बात करने वाले हैं वो लोग एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट की बात बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना? तो इस एरिया में जब आपको कुछ नहीं मालूम तो एक केजी के टीचर को बुलाना पड़ता है। तो सालुंके सर ने केजी के टीचर को बुलाया है और वो नाम है मैं, ठीक है? तो मैं छोटी छोटी बात करूंगा, बड़ी बात नहीं करूंगा। मगर जब भी अपन किसी बड़ी चीज के बारे में छोटी बात करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी खत्म होने लगती है। तो यदि सिंपल करने के लिए कुछ टेक्निकल एरर हो या कमी हो तो आप मुझे माफ करना, ठीक है? अब हम थोड़ा बहुत समझेंगे। आज सब लोग, आप यदि पेपर उठा के देखें या कोई भी वेब एडवर्टाइजमेंट देखें कि नौकरी कहाँ है, तो कहीं ना कहीं एक वर्ड आता है मेडिकल डिवाइसेस। और ये जब मेडिकल डिवाइसेस की बात आती है तो वर्ड आता है डिवाइस। तो यदि हम अंग्रेजी में सोचेंगे डिवाइस क्या है, तो कोई बताएगा कि डिवाइस का मतलब क्या है? मतलब अगर टेक्निकल आंसर नहीं, लेमैन आंसर क्या हो सकता है? डिवाइस मतलब क्या? यदि गुस्सा नहीं हो तो आप बताएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं? डिवाइस यानी एक डिवाइस का नाम। आप टेक्निकल हो रहे हो, टेक्निकल होने की बजाय सिंपल हो। किसी चीज को समझना है तो सिंपल होना जरूरी है। बट अच्छी बात है, आंसर गलत नहीं है। डिवाइस का मतलब क्या है? हाँ,
अच्छा, डिवाइस किस लिए यूज होती है? आपको छोड़ने वाला नहीं हुआ। हाँ चलो बताओ, डिवाइस किस लिए यूज होती है? म्हणजे एक असं मशीन की जे आपल्याला प्रत्येक याचं हे दाखवतं. एक्झाम्पल घड्याळ जे आपल्याला टाइम दाखवतं. ये डिवाइस है। ओके, ये भी सही आंसर है। और कोई डिवाइस का कोई मीनिंग बता सकता है? डिवाइस मतलब क्या? पाटिल सर आप तो बड़ा आंसर दिए। हाँ, ये जो है ना सर ये जो है नॉलेज होगी। समझे? नॉलेज से चीजें समझी नहीं जा सकती, चीजें विजडम से समझी जाती है। ठीक है, बहुत। हाँ सर, tool for the analysis, diagnosis and treatment. ये भी जब नॉलेज हो गया। आप तो विजडम की बात करो, क्योंकि नॉलेज जो है ना यहाँ तक रहता है, तो विजडम आई ना तो यहाँ तक रहती है। किसान के पास विजडम रहती है मगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो आंसर चाहिए डिवाइस का। अच्छा ठीक है, छोटी सी बात, किचन में जाते हैं है ना, यदि आपको शक्कर डालना है चाय में तो किससे डालते हो? हाँ, स्पून क्या है? अरे भाई है कि नहीं? तो डिवाइस मतलब क्या हुआ? हाँ, सबसे बड़ी मतलब डिवाइस शुड हैव ए फंक्शन, डिवाइस शुड हैव ए फंक्शन एंड इट इज ए फिजिकल टूल, इट्स ए टूल। उसमें इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है, कंप्यूटर होना जरूरी है? हाँ नहीं ना। तो कोई भी चीज जिसका कोई फंक्शन हो, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करते हैं और जो हमारे पर्पस को सॉल्व कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे? तो इंपॉर्टेंट चीज एक ही है कि वो फिजिकल चीज होना चाहिए। ये वर्ड आया डिवाइस। तो जब हम कभी भूल चूक से हॉस्पिटल जाते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो डॉक्टर दवाई वगैरह देता है, ठीक है, मगर दवाई के साथ साथ वो दवाई देने के लिए इंजेक्शन भी लगाता है। तो क्या इंजेक्शन वो चीज है जिससे आपकी बीमारी ठीक होती है? हाँ नहीं। मगर क्या दवाई उस इंजेक्शन के बिना दी जा सकती है? हाँ दी जा सकती है, मगर उस कंडीशन में नहीं दी जा सकती। तो उसका मतलब है टू फैसिलिटेट ए थेरापेटिक एक्शन टू डिलीवर द ड्रग यू नीड ए फिजिकल टूल एंड दैट टूल इज ए अभी आप सिरिंज क्या है, बट दैट टूल इज ए डिवाइस फॉर ए मेडिकल पर्पस। ठीक है, आपके ब्रेन में एक ट्यूमर हुआ है या आपकी हड्डी टूट गई है, देखना है कहाँ हुआ है, तो खोलो तो ऐसा करके देखो इधर टूटी हुई है, ऐसा करेंगे नहीं, फिर एक्सरे लेंगे। फिजिकल डिवाइस यूज्ड फॉर मेडिकल। तो मेडिकल डिवाइस का कंसेप्ट यदि हम देखें तो क्या आज का है, कब का है? पुराना है, कितना पुराना? ये जरा फिर कठिन क्वेश्चन हो जाता है, कितना पुराना बाद में देखेंगे अपन ना। सर बोलूं ना, थोड़ा टाइम होगा। तो बड़ी बड़ी स्लाइड्स पर आप बाद में जाना, यहाँ आप आंसर में देखेंगे कि मेडिकल डिवाइस का बिग पिक्चर क्या है। ओके, और सिर्फ उतने पिक्चर देखेंगे जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आए आपके कैरियर के लिए। ओके, उतना ही मेरा पर्पस है। सर इसको कुछ चेंज कर सकते? हाँ, इससे पहले थोड़ा पहली स्लाइड में जाना, पहली ये इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, मगर इस पर लेफ्ट में कुछ मैंने नाम लिखे हैं, है ना। क्या है, कंप्यूटर आने के कारण बहुत इजी हो जाता है अच्छी स्लाइड बनाना, आ रहा है बराबर। तो उधर आपको लगा होगा पिक्चर नहीं दिख रही इसलिए कुछ लगा दिया। क्या लिखा है लेफ्ट में? पढ़ो 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 पढ़ो। एज ए फार्मासिस्ट यू शुड रीड इट। ओके, सबसे अच्छा नाम कौन सा लग रहा है उसमें? फिलिप्स। किसको अच्छा लगा फिलिप्स? हाँ आपको, प्लीज
फिलिप्स का नाम किस लिए फेमस है? इलेक्ट्रिक बल्ब, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब इज व्हाट? इट्स अ डिवाइस। इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाने वाली कंपनी का नाम मानेंगे मेडिकल डिवाइसेस मिलेगा। एवरीवन नोस फिलिप्स बल्ब बनाता है, फिलिप्स आयरन बनाता है, तो क्या फिलिप्स का कोई संबंध है क्या इलेक्ट्रिक मेडिकल डिवाइसेस? अरे भाई दो ही चीज हो सकती है, या तो मालूम है या नहीं मालूम है। नहीं मालूम है तो कोई पाप नहीं किया आपने, बोलने का नहीं मालूम। बोलो, मुझसे बात करो, मैं जिंदा आदमी हूँ, टीवी नहीं हूँ। हाँ बोलो आप। फिलिप्स को मेडिकल डिवाइसेस बनाता है? हो सकता है। अब हो सकता है। हो सकता है। मंकी सिटिंग ऑन फेंस, नॉट दिस साइड नॉट दिस साइड। हो सकता है क्या, या तो मालूम है या नहीं पड़ेगा। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दूसरी कंपनी में पढ़ सकता है? कोई दूसरी कंपनी पढ़ सकता है? हाँ प्लीज बैठो बेटा, कोई बात नहीं। मैट्रॉनिक्स, ये किसकी कंपनी है बॉस? हाँ मैट्रॉनिक, मैट्रॉनिक किसकी कंपनी है? कहाँ सुना है इसका नाम आपने? किस चीज के लिए सुना है? डिप्लोमा में सुना, ग्रेट। कहाँ से किया बेटा तुमने डिप्लोमा? नहीं, ये सुना है ब्रांच का। हाँ, डिप्लोमा कहाँ से किया है ये पूछ रहा हूँ। डिप्लोमा नहीं किया, मैं डायरेक्ट ओके, कहाँ सुना है तुमने इसका नाम? सामनगांव पॉलिटेक्निक, किसी सेमिनार वगैरह में सुना है क्या? गुड गुड, आपको याद है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। कम से कम आपने किसी सेमिनार की सुनी हुई चीज याद रखी, वेरी गुड। और किसी का नाम किसी ने सुना है क्या? हाँ बेटा, बैक्स्टर फार्मास्यूटिकल्स, वेरी गुड। बैक्स्टर किस लिए सुना है तुमने नाम? बैक्स्टर, अच्छा क्या करते हैं बैक्स्टर? My relative is there who is in parental unit. वेरी गुड। तो बैक्स्टर क्या बनाती होगी? क्या? Parental formulations. कौन सा पेरेंटल बनाती है बैक्स्टर? I don't know. ओके ओके, क्या नाम है आपका? Himanshu Mani. हिमांशु के लिए जरा अपन एक क्लैप देंगे। हिमांशु ग्रेट। बाय द वे मैं बताता हूँ, बैक्स्टर इज a world leading company for making large volume parenterals, specialized large volume parenterals। बहुत बड़ी प्रोफाइल है। ओके, मैं पेरेंटल बना रहा हूँ तो मैं मेडिकल डिवाइसेस में लिख रहा हूँ उनको। अच्छा ठीक है, कोई बात। और कोई कंपनी, और कोई कंपनी पढ़ रहा है क्या? पढ़ सकते हैं क्या आप, या इसमें से जानते हो? जॉनसन का नाम किसी ने नहीं सुना? हाँ, नहीं सुना? तो क्या आप लोग सब लोग जो है डिमेंशिया के पेशेंट हो? तो प्लीज बताइए, आप खड़े होइए ना, इतना मतलब क्या प्रॉब्लम क्या? खड़े बताइए, किसने सुना है जॉनसन एंड जॉनसन का नाम? बेबी प्रोडक्ट्स, वेरी गुड। बेबी प्रोडक्ट इज अ मेडिकल डिवाइस। यस, ओके ओके, वेरी गुड। इससे अच्छा जॉनसन का नाम किसी ने सुना नहीं क्या किसी प्रोडक्ट के लिए? बेबी को छोड़ के बड़े के लिए कुछ? हाँ, कोई बैंडेड के बारे में बोल नहीं रहा। बैंडेड कभी लगा तो आपको पट्टी नहीं लगाई आपको? वो कौन बनाता है? ठीक है, चलिए। तो ये पहली स्लाइड जो है ना, यदि पहली स्लाइड का वो कोना जो है, वो कोने के बारे में आप आधा घंटे बात करोगे ना आप, तो आपको मेडिकल डिवाइसेस के बारे में इतना पता चलेगा कि आपको अलग अलग डायमेंशंस निकलेंगे उसमें से कि मेडिकल डिवाइसेस है क्या। मैंने मेडिकल डिवाइसेस की कोई डेफिनेशन आपको बताई नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्ट बताया है कि मेडिकल डिवाइसेस आर इंस्ट्रूमेंट और ए फिजिकल यूटिलिटी यूटिलाइज्ड फॉर मेडिकल पर्पसेस। अब मेडिकल पर्पसेस बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। अभी आपने देख लिया, एक कंपनी बैंडेड बनाती है, वही कंपनी फूड प्रोडक्ट बनाती है, वही कंपनी डायपर्स बनाती है, आपको पता नहीं वही कंपनी स्टंट्स में बनाती है।
बराबर है सर? थोड़ा मुझे कम आप हो यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ। अब आपको लगेगा स्टैंड बनाती है तो ये तो सब फिजिकल डिवाइसेस है, मगर फार्मेसी के स्टूडेंट को फिजिकल डिवाइसेस से क्या लेना देना? क्यों? फिजिकल डिवाइस है ना, तो स्कैल्पल इज आल्सो रिलेटेड टू फार्मेसी। No, but stunts we are using the cholesterol. मगर वो तो फिजिकल डिवाइसेस है ना। फार्मा आपको बनाना आता है स्टंट? मगर आप क्या सीखते हो 4 साल के क्यूरिकुलम में? फॉर्मुलेशन बनाना ही सीखते हो ना, रॉ मटेरियल, एक्सिपिएंट, पैकिंग, स्टेबिलिटी, एनालिसिस, यही सीखते हो। तो ये फिजिकल डिवाइसेस आ कहाँ रही है आपके क्यूरिकुलम में? फार्मासिस्ट के लिए क्यों जरूरी है? यदि हम स्कैल्पल की बात करते हैं तो मेटलर्जी वाला या मैकेनिकल इंजीनियर है। स्टंट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती है। एक्सरे की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस वाले लोग आते हैं। ओके, फार्मासिस्ट की जगह कहाँ है? तो इज इट अ रिलेवेंट टॉपिक टू अस? इफ इट इज यस, then we don't know why. If it is no, then why all these pharma industries are entering in this field? क्योंकि जॉनसन जॉनसन कोई छोटी कंपनी नहीं है, it is number 3 company. So the world investment in this area is huge. तो फार्मेसी वाला जहाँ पर भी उसको जॉब की प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसी जगह में जाना चाहिए जहाँ पर उसको जॉब मिले और उसकी नॉलेज का भी यूज हो। तो क्या हमारे पास वो नॉलेज है? हम यूज कर सकते हैं सर। क्या यूज कर सकते हो आप? अगर हम स्टंट्स का एग्जांपल दें सर, तो उसमें स्टंट्स जो वो मैकेनिकल इंजीनियर बनाएगा जरूर, और उसे पता नहीं है जो फिजिकली हमें जो चाहिए वो कैसे बनाना है। उसके लिए अगर हमको उसका साउंड नॉलेज होगा तो हम उसको वैसे बना सकते हैं जैसे हमें चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मगर आपने कभी भी किसी आर्टरी को देखा है जिंदगी में? नहीं देखा। आर्टरी का ब्लॉकेज देखा है कैसा होता है? नहीं देखा। कैसे श्रिंक होती है और कैसे उसमें बलून डाला जाता है देखा है क्या? किसी फार्मासिस्ट ने देखा है क्या? बड़े बड़े लोग बैठे। बट वी आर स्टडीइंग दैट ना सर। तो वही बात करने वाला हूँ आपको मैं। हम स्टडी दुनिया भर की चीज कर रहे हैं, मगर हमारे पास स्किल है क्या? हेलो, प्लम्बर यदि कहे कि मैंने इंजीनियरिंग में प्लम्बिंग पढ़ी है और अपने घर का टॉयलेट का ब्लॉकेज नहीं निकाल पा रहा तो काम रहेगा क्या? अपन वही है। आज का सेमिनार इसीलिए है कि हमने पढ़ा है मगर हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं तो एक्सपर्ट आपको बताने वाले हैं, मगर वो बताने के पहले उस रास्ते तक मैं आपको ले जाने वाला हूँ। इतना मेरा काम है। बैठ जाइए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सुशांत भाई, थैंक यू वेरी मच। कम से कम आप लोग, हिमांशु जैसे लोग जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं मेरे लिए। चलो भाई प्लीज नेक्स्ट हो सकता है क्या? तो अभी ये कैसे आया क्या आया ये बाकी लोग बताएंगे, मगर मेडिकल डिवाइसेस की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरीज मैं बताने वाला नहीं हूँ आपको, मगर इसमें से बहुत सारी आपने बोल दी है। मेडिकल डिवाइसेस में डायग्नोस्टिक्स आते हैं। ओके, डायग्नोस्टिक्स बहुत सारे हो सकते हैं। अब डायग्नोस्टिक में आपने कुछ नाम लिए हैं, है ना? जैसे आपने लिया है, कौन सा दिख रहा है आपको? MRI दिख रहा है, मगर अकेला MRI नहीं है, MRI के साथ बहुत सारी चीजें आ जाएंगी और उससे प्रोटोटाइप लिखा हुआ है। दूसरा जो होता है वो थेरापेटिक डिवाइसेस होता है। कैटेगरी जो है थेरापेटिक डिवाइस, सब लोगों ने वो नाम सुना हुआ है। कौन सा? और पेसमेकर के बाद कुछ लिखा हुआ जानते हैं ना? फार्मासिस्ट इन्फ्यूजन पंप ICU में यूज होते हैं, है ना, टू डिलीवर द ड्रग। ओके, तीसरी कैटेगरी है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कोई डिनाई नहीं कर सकता सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें क्या आ गया? फोर्सेप्स। ओके, फिर आता है मॉनिटरिंग डिवाइसेस। ओके, मॉनिटरिंग डिवाइसेस आप में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, और आप में से बहुत सारे लोग जो है ना जो टेक्नोलॉजी सेवी हैं। ग्रेट, चलिए खड़े हुए बताइए वो क्या है?
बताइए, सबको बताइए, डिजिटल वॉच, उधर बताइए आप डिजिटल वॉच किधर है उनको यहाँ बताइए। पे। हाँ, ये क्या है वो? वॉच है, डिजिटल वॉच डिवाइस। यदि आप उसको वॉच बोलेंगे ना तो आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो। मॉनिटरिंग कराइए। क्या मॉनिटर करते हो उस पर? उससे हार्ट रेट देखो, आज वॉच में आप हार्ट रेट, आप सिर्फ हार्ट रेट ही मॉनिटर करते हैं? ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन और स्टेप्स मॉनिटर और क्या बात है, क्या बात है? आपने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया। कंपनी बताइए। नॉइज नॉइस इसी से नहीं किया उसमें? इसी से नहीं है? नॉइस प्रो है, नॉइस है। गिफ्ट मिला इट्स नॉइस। इसका सॉफ्टवेयर देखा है क्या आपने? आपने ये लोड किया क्या सॉफ्टवेयर उसका? उसको देखिए आप, देखिए आप उस चीज़ को छोटा मत समझिए। इट इज अमेंडिंग एफर्ट्स ऑफ द टेक्नोलॉजिकल पीपल हु हैव क्रिएटेड ए मार्वल। कितने लोग ये स्मार्ट वॉच पहने? बस एक हाथ उठाइए। कितने लोग जानते हैं कि इसका कोई यूज है? वेरी गुड। आपको पता है कि आपकी स्मार्ट वॉच क्या करती है? क्या करती है आपकी स्मार्ट वॉच? अलार्म। हाँ, कभी दिया है क्या ट्रिगर से? कभी ट्रिगर दिया है क्या उसने? आपकी स्मार्ट वॉच ने कोई ट्रिगर किया है क्या? नहीं। तो आप एक वर्ड पर आ रहे हैं ना, हर आदमी कहता है मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है। ये आप तक ही नहीं, ये सबकी प्रॉब्लम है। आपको पता ही नहीं है कि एट योर डोर स्टेप व्हाट हैज कम। ये जो स्मार्ट वॉच आपने पहनी है, इसमें इतने अच्छे सेंसर्स हैं कि आपकी बॉडी की बहुत सारी चीज़ों को वो मॉनिटर करते हैं। और वो सिर्फ मॉनिटर नहीं करते, उनके ऐप के थ्रू आपका बायोलॉजिकल डेटा एक सर्वर पर जाता है। फिर जब आप इंस्टॉल करते हो तो आप स्पेसिफाई करते हो, जब वो सर्वर पर जाता है तो आपका डेटा इकट्ठा हो रहा है और वो डेटा एआई के थ्रू एनालाइज हो रहा है। और वो एनालाइज होने के बाद उस पर कुछ डिसीजंस होते हैं। तो जब भी आपके कोई बायोलॉजिकल डेटा में प्रॉब्लम आएगी, उनका एक कंसल्टेंट बैठा हुआ है, आपको कॉल आएगा यदि होती है कोई प्रॉब्लम। वो कॉल आएगा, वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपकी ये इशू है, आप ये करिए। ये काम कौन करता है? आपके डिसीज के टाइम आपको कंसल्टेशन कौन देता है? डॉक्टर देता है ना। तो आपको डॉक्टर पास जाने की जरूरत है क्या आज के दिन? नहीं, वो तो है, मगर एक पार्टली तो रिप्लेस हुआ है ना। ओके, दिस एरिया इज ऑफ टेलीमेडिसिन। दिस एरिया इज, आपको पता नहीं है कि आपने एक छोटा सा 5-7 हज़ार के इन्वेस्टमेंट पर क्या खरीद लिया है, ये जिन है। तो आपका पूरा बायोलॉजिकल डेटा अवेलेबल है। अपन देखेंगे किसी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। फिर नेक्स्ट है इम्प्लांट। आज हम सब लोग जानते हैं व्हाट इज स्टेंट। ओके, सब लोग जानते हैं कि यू हैव प्रोस्थेसिस लाइक हिप जॉइंट्स एंड ऑल। ओके, उसके भी अलग अलग चीज़ें। जॉनसन इज वन ऑफ द बिग प्लेयर, देयर आर मेनी, but they are the big player for these joints. Then you have assistive devices, hearing aids. मेरे जैसे लोगों को लगती है hearing aids. Okay? Then you have wheelchairs. Hello. अब आपने ये सब चीजें देख ली हैं, आप बता सकते हो कि ये सब चीजें देखने के बाद कॉमन पॉइंट क्या है? IQ क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? हाँ, तो जैसे आपने वो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ना, 4 फिगर दिए रहते हैं और 4 फिगर में कॉमन क्या है? हेलो, हाँ, कॉमन चीज क्या? ठीक है, तो मेडिकल डिवाइसेस से भी समझ में आता है कि वो हेल्थ से रिलेटेड है, मगर किसकी हेल्थ? हाँ,
कौन सा पेशेंट? पेशेंट ऑफ लिविंग सर कैडेवर के लिए थोड़ी यूज करेंगे सर। ये सब चीजें यदि देखें आप, सॉरी जरा बैक का, ये सब चीजें देखें आप तो ये जनरली किसके लिए यूज होती? जनरली कौन से पेशेंट के लिए जनरली यूज होगी? अरे यार बहुत हो गया सर यार, वो तो इसीलिए तो मेडिकल डिवाइस है। हाँ, पेसमेकर किसको यूज होगा? तो जनरली पेसमेकर किस एज के आदमी के लिए यूज होगा? व्हील चेयर किसके लिए यूज होगी? हियरिंग एड किसके लिए यूज होगी? ऐसा नहीं है कि नॉर्मल एज को नहीं होगी, मगर मेजॉरिटी किसको होगी? तो मेडिकल डिवाइसेस का मेजर फोकस कहाँ है? हेलो, आपको ऐसा कॉमन नहीं समझ में आ रहा है सर? इसका डिस्कशन करते हैं अपन क्लस्टर एनालिसिस कि मेडिकल डिवाइसेस सारा किसके लिए ज़्यादा यूज होगा? हेलो, क्यों? क्योंकि जेरियाट्रिक्स की मेडिसिन उतनी अच्छी डेवलप नहीं है। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है ना, कम तो नहीं हो रही, मगर डेथ रेट कम हो रही है। हेलो, तो यदि डेथ रेट कम हो रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एवरेज एज कहाँ सर रही है? हेलो, एक दिन ऐसा आएगा कि अपनी दुनिया बूढ़ों की दुनिया हो जाने वाली है। अरे भाई, है कि नहीं? जब हम बच्चे की हंसी देखने के लिए तरस जाएंगे, हम उस दुनिया की तरफ जा रहे हैं। यूरोप हैज बिकम लाइक दैट। हेलो, तो ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये बात बहुत बड़ी साइंस की रॉकेट साइंस है क्या? हेलो, या क्या है? कॉमन सेंस। ये क्या है? हेलो, कॉमन सेंस है ना? ये कोई साइंस पढ़ने वाले सीख सकता है क्या? कोई भी सीख सकता है। तो जो चीज कोई भी सीख सकता है और इम्पोर्टेंट है वो कहलाती है विजडम। हेलो, फार्मेसी वालों में किस चीज की कमी है? हेलो, तो नॉलेज बहुत है आपके पास, क्या नहीं है? विजडम। आप दवाई बना रहे हो, मगर जो तुम्हारा फ्यूचर में आने वाला बिजनेस है उसकी तरफ ध्यान दे रहे हो क्या आप? हेलो, तो फ्यूचर में आने वाला बिजनेस कौन सा है? हेलो, कौन सा पेशेंट आपका बिजनेस मॉडल है? जेरियाट्रिक। तो सोचना किसके लिए चाहिए? जेरियाट्रिक। सोचते हो क्या? आपके क्यूरिकुलम में है क्या? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तो हम सोच ही नहीं रहे। तो अब मैंने भी आपको क्या टिप दी? कहां पर बूढ़े लोग ज्यादा हैं? अमेरिका, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर फैमिली है। फैमिली का कंसेप्ट गया। पीपल डू नॉट बिलीव इन हैविंग द चाइल्ड, दे आर सिंपली मैरिजेस, नो चाइल्ड। इफ नो चाइल्ड, न्यू ग्रोथ इज नॉट देयर। बट गुड मेडिसिन्स, आदमी मरेगा ही नहीं, क्योंकि दवाई की बेसिस ही वही है, अमृत ढूंढो। एलेक्सर ऑफ लाइफ पढ़ाते हैं डिस्पेंसिंग में आपको। तो मरेगा नहीं आदमी और पैदा नहीं होगा तो दुनिया किसकी बनेगी? बुड्ढों की बनेगी। यू वुड लाइक कि आपके पूरे गांव में सब लोग ऐसा लाठी लेके चल रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कौन देखेगा? मेडिकल डिवाइस इज योर फ्यूचर। ओके, आज नहीं सोचा, किसने सोचा? अभी कंट्री का नाम बताया ना मैंने यार, यूरोप ने सोचा। तो आगे कौन रहेगा? यूरोप रहेगा। ये सब कंपनियां कहाँ हैं? तो आपने सुना यूरोप में ये कंपनी क्यों है? दिस इज विजडम। मगर कहाँ होना चाहिए यदि लीडर होना है? तो कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, क्योंकि हम कर सकते हैं।
बुढ़े आदमी ज़्यादा सोच सकते हैं कि यूथ, मगर यूथ तो पबजी खेलने में माहिर है। सोच रहा है क्या ऐसा बात है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर मुझे जब रोकना रोक देना। अभी यहाँ पर बहुत आपको जो है मैं 5-6 पॉइंट बता रहा हूँ, आपके दिमाग में यदि बैठ जाए तो आज के बाद फाइनल ईयर के बाद मेडिकल डिवाइसेस के बारे में सोचें। पहला पॉइंट है मार्केट बूम। तो आप ये फिगर यदि कभी सोचोगे ना तो आपका दिमाग उड़ जाने वाला है। 2025 में ये जो मार्केट है वो 50 बिलियन का पहुंचने वाला है यूएस डॉलर। 10-11 बिलियन जो आज एग्जिस्टिंग है 50 बिलियन होने वाला है। 50 बिलियन का फिगर आप समझते हो? तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर डाला गया पैसा और यहाँ डाली गई टेक्नोलॉजी का रिटर्न किसी भी बैंक से बहुत ज़्यादा होने वाला है। इतना बड़ा मार्केट बूम आने वाला है। तो इस बात को हमने तो नहीं समझा, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समझा, और राज्यसभा में एक कमेटी में इसके बारे में रिपोर्ट मांगी गई। एंड दैट एक्सपर्ट कमेटी हैज सजेस्टेड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड pour money into this area, and that amount of money which was funding is available, that is 86,000 crore। आप मुझे बता दो कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रायोरिटी फंडिंग में इतना फंडिंग। तो मेडिकल डिवाइसेस पे यदि आप काम करना चाहते हो, आइदर एट R&D लेवल, डेवलपमेंट लेवल, मैन्युफैक्चरिंग लेवल और एक्सपोर्ट लेवल, गवर्नमेंट फंडिंग इज अवेलेबल। इसका मतलब आपके पास फंड हो या नहीं हो कोई मैटर नहीं करता, आपके पास नॉलेज और टेक्नोलॉजी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, ये एरिया फार्मेसी वाला ने इसलिए पढ़ना चाहिए कि मेडिकल डिवाइसेस वो एरिया है जहाँ पर फार्मेसी की स्किल्स लगती हैं। भले हम नहीं पढ़ते मगर फार्मेसी की स्किल लगती है। फार्मेसी की कौन सी स्किल लगती है कि मेडिकल डिवाइसेस आर बेसिकली कॉम्बो। आपने देखा होगा एक डोसा के साथ कोका कोला फ्री है कि नहीं? तो ड्रग डिवाइसेस इज ए मेडिकल डिवाइस। तो यहाँ पर ड्रग भी है, डिवाइसेस भी है। तो रादर देन टेलिंग यू गाइस इंजीनियर, I will say you are my friend. So they are not your enemy. चलो कितना अच्छा कैंपस है, फार्मेसी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल है, आपका इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर है, दोस्ती बढ़ाइए। इसका मतलब है आपके पास 2 हाथ थे, अब 6 हाथ है, तो मिलकर काम कीजिए। साला एक डिसोल्यूशन का टैबलेट का निकालने के बाद एक फालतू पेपर बनाने से अच्छा है कि इंजीनियरिंग वाले को बोलो कि यार अपन एक ड्रग डिवाइस बनाते हैं। क्योंकि हमको जो फार्माकोलॉजी पढ़ी है हमने, वो इंजीनियरिंग वाले को नहीं मालूम कि फार्माकोलॉजी क्या है। हम इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि एक कंपनी ने स्टेंट बना दिया है, बराबर से, और वो स्टेंट मार्केट में बहुत चल रहा है। कभी डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाके पूछो कि वो स्टेंट की कोई प्रॉब्लम है क्या, तो डॉक्टर बताएगा है मगर सोल्यूशन बहुत कम है। सर बता सकते हैं शायद एग्जाम्पल, व्हाट स्टेंट डज? What stent does? Dilate करता है, so blood flow बढ़ जाता है, but it's a foreign object. When it's a foreign object, तो there is a reverse phenomena. No, it's a reverse phenomena कि उस पर deposition चालू हो जाता है, and when that is known as stenosis. तो हमको ये तो पढ़ाया जाता है कि stent dilate करता है, मगर stenosis phenomena पढ़ाते नहीं हमारे curriculum में, क्योंकि टीचर को नहीं मालूम कि भाई वो स्टेंट का एक प्रॉब्लम ये भी है, बट दिस प्रॉब्लम इज नॉट ए फार्मेसी प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज ए क्लिनिकल प्रॉब्लम। मेडिकल वाला जानता है, हम मेडिकल वाले को दुश्मन मानते हैं क्योंकि हमको उसमें एडमिशन नहीं मिला। हेलो, कभी उसके साथ बैठो, वो भी खुश नहीं, वो आपसे ज़्यादा ना इंजीनियरिंग वाले को वैल्यू देता है, बिकॉज ऑफ हिम ही इज हैविंग ए गुड सर्जिकल टूल्स। तो आपने जो अपना एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना लिया है, कुएं के मेंढक होकर बैठे हो कि फार्मेसी फार्मेसी, कुछ नहीं हुआ जब तक कि आप सोसाइटी के लिए नहीं। सोसाइटी में जाओ, इंजीनियर से बात करो, पेशेंट से बात करो, डॉक्टर से बात करो, वो बताएंगे कि आपको करना क्या है। ओके, सो इट्स ए कॉम्बो, एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बो कंसेप्ट यू हैव गॉट ए टूल लाइक इंसुलिन पेन,
So insulin pen has a drug, but it's engineering. You are a patch. सर ये हो सके तो बताना आप वो फोटो, आज पैच मिलते हैं हाँ, कि आप लगा लो वो पैच, वो सेंस करेगा ग्लूकोज लेवल और इंसुलिन डिलीवर करेगा, इतना ही बात नहीं है. इट रिक्वायर्स द डेटा एंड इट सेंड्स. हाँ, और वो डेटा जाकर के आपकी प्रोफाइलिंग होती है और वो डेटा जो है एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाता है. वो कहता है कि आपको इसके साथ ये मेडिकेशन करना पड़ेगा. सो ड्रग डिवाइस कॉम्बो नाउ हैविंग मेनी आस्पेक्ट एंड बिकॉज ऑफ इट हर कोई बनाएगा. यदि हर कोई बनाएगा तो उसका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, कौन देखेगा? तो थोड़ा रेगुलेशन आ जाता है, जिस पर आज साफ बात करने वाले हैं. क्योंकि यदि वो रेगुलेशन नहीं होंगे तो कोई बनाएगा. अब आपको वो क्या रेगुलेशन आएंगे? तो आपके दिमाग में तो फोरेंसिक फार्मेसी है. हेलो, तो रेगुलेशन द्वारा फोरेंसिक फार्मेसी क्या कहती है? कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसमें डिवाइसेस वर्ड था ही नहीं. तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये नहीं करेंगे तो तूफान हो जाएगा, कोई कुछ भी बनाएगा और बेचेगा. मार्केट में ऐसे कई डिवाइसेस हैं. और डायबिटीज़ के लिए इलेक्ट्रिक करंट वाली चप्पल आ गई है, एक्यूपंक्चर बेचते, उसका इफेक्ट है क्या? हो भी सकता है, मैं से नहीं कह रहा नहीं हो सकता है, मगर कंट्रोल क्या है उसका, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? यू आर द पर्सन हु नोज द लॉ रिलेटेड टू लाइफ. तो ये आपकी स्ट्रेंथ है. आप ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस इज अ वर्जिन फील्ड. आप जाओ और काम करो, आप इतना काम करने को है वर्ल्ड वाइड.